Dear students, today we are going to discuss ionization energy. We also call it ionization enthalpy, or within this topic, we'll be discussing successive ionization energies and factors affecting the ionization energy. Now, let me start this ionization energy with this figure. इस फिगर में क्या है? We are considering a model of an atom. This is our nucleus consisting of the positively charged protons, and around this nucleus electrons are arranged in different shells. ठीक है? Just by looking at this figure, we can say that this element is which element? Let us count the number of electrons. That's 2, 2 plus 8, 10, 10 plus 2, 12. This is magnesium. So, if we want to remove this electron, ये जो हमारा outermost electron है, या जो हमारा हाईएस्ट एटॉमिक ऑर्बिटल है, हाईएस्ट एटॉमिक ऑर्बिटल में हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एटॉमिक ऑर्बिटल है ये हमारा, तो इससे अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे, what we will have to do, we will have to supply some energy. क्यों? We see ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है. Obviously there is a force of attraction between the two. ठीक है ना? तो इस फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? We will have to supply some energy to eject this electron. यही एनर्जी जो हमें देनी पड़ेगी to eject an electron, to break it free from the attraction of the nucleus, to dislodge an electron from the outermost shell, इसी एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी. I hope it is clear. But यहाँ पे एक important चीज है. Let us suppose the energy required to remove this electron is let us say 50 kilojoules. तो अगर हम 49 देंगे, 45 देंगे, 47 देंगे, तो obviously ये electron dislodge नहीं होगा. But चूंकि 50 इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है, अगर हम 50 देंगे या 55 देंगे या 53 देंगे या 56 kilojoules of energy देंगे, तो this electron will be dislodged. So is it sufficient to say that the energy needed to remove the outermost electron's ionization energy? No, it is not. We have to add the term minimum. So the ionization energy is the minimum amount of energy. यानी कि अगर ये 50 kilojoules इससे को चाहिए dislodge होने के लिए, तो this 50 kilojoules will be the ionization energy. Although this electron can be dislodged by any amount of energy equal to or greater than 50, but ionization energy will be 50. So this is important that the minimum amount of energy required to eject an electron will be our ionization energy, right? तो अब हम देख लेंगे, ये हमारे 3 एटम्स है, ठीक है? Obviously 3 plus lithium है ये सोडियम है और ये पोटेशियम है. 3 plus means it has got 3 positive charges, 11 positive charges and 19 positive charges. That is their atomic number. So meaning thereby this is lithium, this is sodium and this is potassium. ठीक है? तो इनका जो outermost electron eject करने के लिए energy लगेगी, that will be our ionization energy. As evident from the figure, in case of lithium, जो हमारी ionization energy है, that is 526 kilojoules. In case of sodium, it is 502, and in case of potassium, it is 425. ठीक है? हम देख रहे हैं जितना साइज बढ़ता जा रहा है इस एटम का. और एक चीज आप यहाँ याद रख लीजिएगा कि जब हम आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, तो वी विल हैव टू कंसिडर आइसोलेटेड गैसेस एटम. जो भी हम एटम लेंगे, चाहे वो लिथियम हो, सोडियम हो या पोटेशियम हो, हमें लेना है ये
this atom should not be bonded to some other atom and it should be in gaseous state. तब वो मिनिमम एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कह सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे देख रहे हैं जितना ये रेडियस बढ़ता जा रहा है उतना हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जा रही है। ऑब्वियसली जितना ये हमारा रेडियस बढ़ता जाएगा, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उस पे जो न्यूक्लियस का फोर्स है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल डिक्रीज ओइंग टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू। ठीक है, और जितना ये फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, the energy with which this nucleus is held by this with which this electron is held by the nucleus, जो जिस एनर्जी से ये बाउंड है, जिसको कि हम बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं, वो डिक्रीज होती जाएगी, जिसकी वजह से हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी रादर। ठीक है, तो ये इन जिस एनर्जी से ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को या इस इलेक्ट्रॉन को, इन शॉर्ट इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को पकड़े हुए हैं, अट्रैक्ट किए हुए हैं, द एनर्जी इज बाइंडिंग एनर्जी, और हमें इतनी ही एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी। ये बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव होती है, हमें इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि हम इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर पाए, और यही हमारी आयनाइजेशन एनर्जी है। हम इसको आगे चलते हुए डिटेल में डिस्कस करते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, तो सो हाउ इज आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइंड? आयनाइजेशन एनर्जी, इसको हम आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कहते हैं, is the minimum energy required to remove an electron from the highest occupied atomic orbital of an isolated gaseous atom or ion. जरूरी नहीं है कि हम ही इलेक्ट्रॉन सिर्फ एटम से ही डिसलॉज करें, एटम से ही इजेक्ट करें, इट कैन बी एन आयन ऑल्सो। हम एक आयन से भी अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करते हैं, द एनर्जी टू बी सप्लाइड, द मिनिमम एनर्जी रादर टू बी सप्लाइड इज कॉल्ड एज द आयोनाइजेशन एनर्जी। ये मिनिमम एनर्जी पे आप खास ध्यान दीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज क्रूशियल। ठीक है, मिनिमम एनर्जी। ओके, now coming to the next point. Okay, ionization energy may be defined as the minimum energy that an electron in a gaseous atom or an ion has to absorb to come out of the influence of the nucleus. This has been explained. These are the different ways of defining ionization energy. ठीक है? Sometimes we also refer this ionization energy to as ionization potential या ionization enthalpy. It is an endothermic process since we have to supply energy. हमें इलेक्ट्रॉन को डिस्लॉज करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। ये जो एटम ये इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, सो इट्स एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब ये सवाल है कि ये आयनाइजेशन एनर्जी किसके बराबर होती है? जैसे कि मैंने आपको इससे पहले स्लाइड में बताया कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच, मैं थोड़ा सा आपको लेट मी शो इट, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्टिव फोर्स होता है। इलेक्ट्रॉन एक खास एनर्जी से इस न्यूक्लियस एक खास एनर्जी से इस इलेक्ट्रॉन को अपने साथ बांधे रखता है, जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। ठीक है, और इस बाइंडिंग एनर्जी के बराबर हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। ये बाइंडिंग एनर्जी जो होती है इट्स नेगेटिव, राइट? हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी इक्वल टू द बाइंडिंग एनर्जी देनी पड़ती है to dislodge the electron. So ionization energy is basically equal to the binding energy. और अगर आपको याद होगा बाइंडिंग एनर्जी हमने श्रोडिंगर इक्वेशन में हमने ये देखी थी, बाइंडिंग एनर्जी किसके बराबर होती है। यहाँ पे हम थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। The binding energy of an electron can be calculated by Schrodinger equation. हमें क्या जरूरत है बाइंडिंग एनर्जी निकालने की? क्योंकि जो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी होती है ये इसी बाइंडिंग एनर्जी के बराबर होती है। हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है? H psi is equal to E psi. E is the binding energy, psi is the wave function. Wave function we use to represent the orbitals, और H इसको हैमिल्टन ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, हम
श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बर्निंग एनर्जी। और इससे पहले हम ये सॉल्व कर चुके हैं। इसके लिए आप जो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है क्वांटम मैकेनिक्स का, क्वांटम केमिस्ट्री का, उस पर देख लीजिए, उस पर उसकी पूरी डेरिवेशन दी हुई है। ठीक है, तो जब हम वो डिराइव करते हैं तो हमारी जो बर्निंग एनर्जी है that comes equal to minus 1 by n square m e raised to the power 4 8 epsilon 0 square h square. E is the binding energy, n is the principal quantum number, yeah, the number of the shell, m mass of the electron, E energy of the electron, epsilon 0 permittivity और permittivity of free space rather, और h हमारा Planck's constant है। तो इस E के वैल्यू को हम H psi is equal to E psi या श्रोडिंगर इक्वेशन के वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, ये जो हमारी ये वैल्यू जो है, दिस इज बर्निंग एनर्जी बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। अगेन हमने श्रोडिंगर इक्वेशन लिखी, H psi is equal to E psi. Now what we will do, we will substitute the value of this E. इस E के वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, इस वैल्यू को we will substitute this value in the Schrodinger equation, right? Okay, तो इसका मतलब हो गया H psi जो हो गया that's equal to minus 1 by n square, this is basically minus 1 by e square me4 divided by 8 epsilon 0 square h square psi। लेकिन ये जो हमारा है, let me add minus here first, let me add minus, ठीक है, क्योंकि e is equal to minus 1 by n square। तो ये जो वैल्यू है, दिस पोर्शन, ये पोर्शन हमारा इक्वल टू है ये जो me4 8 epsilon 0 square h square जो है, इट्स इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट, और इस रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है इट्स इक्वल टू 2.18 into 10 raised to the power minus 18 joules। ठीक है, सो वी मे राइट h psi is equal to, दिस इज RH, ये माइनस मिला, ये तो माइनस RH, और नीचे क्या रह जाएगा n square, so h psi will be equal to minus RH divided by n square exactly। This E sub n is equal to minus RH divided by n square, where n is the principal quantum number। ठीक है, and जो n हमारा है ये principal quantum number है, it may be equal to any integer, that's 1 2 3 4 up to infinity। Upon inserting the value of n, जब हम n की वैल्यू इसमें डालेंगे, जैसे if you want to find out the binding energy in level first, energy level first में, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर रिडबर्ग कांस्टेंट के, और वो किसके बराबर है, वो है बराबर 2.18 into 10 raised to the power minus 18, या अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की बात करें तो इट्स इक्वल टू minus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम फिगर देखेंगे जिसमें हम डिफरेंट इसके लिए डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एन के लिए ये बर्निंग एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे, और उसी की पॉजिटिव वैल्यू जो है, बर्निंग एनर्जी नेगेटिव है, इसी बर्निंग एनर्जी की पॉजिटिव वैल्यू से हमें आयनाइजेशन एनर्जी मिलेगी। यानी कि जो हमारा ग्राउंड स्टेट या स्टेट n is equal to 1 के लिए बर्निंग एनर्जी होगी, उसी का पॉजिटिव वैल्यू ग्राउंड स्टेट के लिए आयनाइजेशन एनर्जी होगी। ठीक है, एनर्जी लेवल 2 के लिए जो होगा उसी का पॉजिटिव वैल्यू हमारी दिस आयनाइजेशन एनर्जी। चलिए, सो ये हमारी एनर्जी लेवल डायग्राम है। ठीक है, तो ये हमारा E1 है, इसमें हमारी वैल्यू है minus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये कब की बात है, जब हम हमारा En किसके बराबर है, RH डिवाइड बाय m स्क्वायर, और फर्स्ट लेवल के लिए या फर्स्ट शेल के लिए क्या होगा, n होगा 1, तो 1 स्क्वायर हम रखेंगे, इसकी वैल्यू है minus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इसी तरह फॉर दिस 2, यहाँ पे हमारे लिए RH divided by 2 square, that will be equal to minus 3.4 electron volts, और infinity के लिए ये binding energy जो होगी that will be 0, यानी कि electron will no longer be bound to the nucleus by any energy and the electron will be free। so जब हम E infinity की बात करते हैं, binding energy infinity पे कितनी होगी, that will be 0 electron volts। ठीक है, और अगर हम किसी भी शेल से, फॉर एग्जाम्पल हमें शेल नंबर 1 में चाहिए हमें कितनी एनर्जी देनी है, तो इन्फिनिटी पे इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट विल बी आवर, व्हाट विल बी दैट इक्वल टू, दैट विल बी आवर आयोनाइजेशन एनर्जी, और उसकी वैल्यू होगी माइनस दिस E, या ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बराबर ये होगी, क्योंकि
बाइंडिंग एनर्जी लेवल नंबर 1 में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आयोनाइजेशन एनर्जी होगी negative of this binding energy, and negative of this binding energy will be equal to 13.6 electron volts. ये हमारा ग्राउंड स्टेट है, दिस इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, जिस लेवल के लिए चाहिए होगी उस लेवल और इन्फिनिटी के बीच में क्या डिफरेंस है, तो दैट विल बी इक्वल टू आवर आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे कि हमें यहाँ पे लेवल नंबर 2 पे हमारे पास जो है वी हैव गॉट -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हमारी बाइंडिंग एनर्जी है। इसका मतलब हमें ये 3.4 नॉट -3.4, हमें 3.4 सप्लाई करना होगा इस इलेक्ट्रॉन को सो दैट इट इज इजेक्टेड। सो इन दिस लेवल, इन लेवल नंबर 2, हमारा जो ये होगा व्हाट वी से आवर दिस आयनाइजेशन एनर्जी विल बी इक्वल टू 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सो वी कैन से ग्राउंड स्टेट में हमारी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी दैट विल बी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n इज इक्वल टू 2, जिसको कि हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी कहते हैं, क्योंकि ग्राउंड स्टेट है, ये हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। लेवल 3 हो गई हमारी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, लेवल 4 हो गई थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो लेवल 2 में हमारा जो है आयनाइजेशन एनर्जी is equal to 3.4 electron volts. So we have to remember ionization energy is equal to negative of binding energy, जैसा कि यहाँ पे ये लिखा गया है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जो हमारी वैल्यूज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी चाहे ले लीजिए चाहे बर्निंग एनर्जी ले, दीज आर क्वांटाइज्ड वैल्यूज। क्वांटाइज्ड वैल्यू मतलब को क्वांटाइज्ड वैल्यू का मतलब होता है कि n is equal to 1, n is equal to 2. We cannot have any value in between where n is having some fractional value. It can be either 1, either 2, either 3, either 4. ठीक है ना, इसके कुछ खास वैल्यूज ही हैं। That is what we mean by saying that binding energy या ionization energy, they are quantized, right? ठीक है, मैंने आपको बताया। सो ये जो हमारा है दीज बाइंडिंग एनर्जी वैल्यूज या आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज, दीज आर क्वांटाइज्ड। ठीक है, चलिए। So thus the ionization energy of hydrogen atom in ground state is equal to RH R. So ionization energy, it won't be minus, it will be plus. ये binding energy 13.6 है। Our ionization energy will be, it can't be minus, it has to be plus. ठीक है, और अगर हम जूल्स में बात करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 2.18 into 10 raised to the power -18 joules. In order to eject an electron from an atom or to ionize it, we need to give energy equal to the negative of this binding energy. जो मैं आपको लगातार बता रही हूँ, that is we will have to give energy जो कि पॉजिटिव वैल्यू होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे करेक्शन भी की, and that is what we call ionization energy. ठीक है, this is the physical significance of ionization energy. So the physical significance of ionization energy is it is equal to the negative value of binding energy. Since binding energy itself is negative, so ionization energy will always be positive, right? Okay, the first or the initial ionization energy, or E1, of an atom or an ion is the energy required to remove 1 mole of electrons from 1 mole of isolated gases, atoms or ions. So यहाँ पे हमने बात की है first या initial ionization energy. We know that when we arrange the electrons around the nucleus in an atom, we have got many electrons. For example, in case of, let us take a simple element, lithium. If we talk of lithium, lithium has got 3 electrons, 2 in the first shell and 1 in the second shell. तो जब हम रिमूव करेंगे तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है, मैं थोड़ा सा इसको लेट मी just try to explain it a bit. So अगर हम लिथियम की बात करेंगे, this is our nucleus, right? This is our first shell and this is our second shell. I'm not able to draw very nicely. ठीक है, ये हमारा 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे पहले शेल में, और दूसरे शेल में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. So when we just talk about the first ionization energy, इसका मतलब है कि when we are trying to remove the outermost electron, ठीक है ना, जब हम outermost electron को remove करते हैं तो we are removing it from an obviously isolated gases atom. ठीक, तो when we remove this electron, we can remove the second electron as well, but
In that case, we will have to remove the electron from the lithium ion, क्योंकि this has already been removed. इस पे तो तभी बारी आएगी जब हम पहले इसको रिमूव करेंगे. So we can remove an electron from a lithium ion. उस जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, the amount of energy to be supplied will be referred to as the second ionization energy. ठीक है. तो जो हमारी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, जब हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, तो बेसिकली वी टॉक ऑफ 1 mole ऑफ आइसोलेटेड एटम्स एंड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 mole ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दोज आइसोलेटेड एटम्स, उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक है. वी डोंट कंसिडर इट एज, वी डोंट, जब हम बात करते हैं कि किसी एलिमेंट की, फॉर एग्जांपल सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी लेट अस से x किलो जूल्स है, वी डोंट मीन दैट ये एक सोडियम एटम की है. बेसिकली वी मीन टू से it is the ionization energy, is the energy required to remove 1 mole of electrons from 1 mole of isolated gaseous atoms of that particular atom. ठीक है. उस एटम, उस एलिमेंट के एटम से जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हम एक मोल की बात करेंगे. इलेक्ट्रॉन जो रिमूव होंगे दैट मस्ट बी इक्वल टू 1 mole, और एटम्स जो हमें अंडर कंसिडरेशन होंगे दैट मस्ट बी इक्वल टू 1 mole. तो हम क्या कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? इट इज बेसिकली द मेजर ऑफ द डिफिकल्टी ऑफ रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स. हमें जब हम एनर्जी देते हैं तो इसका मतलब है कि इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन. सो आयनाइजेशन एनर्जी इज बेसिकली मेजर ऑफ डिफिकल्टी टू ऑफ रिमूविंग इलेक्ट्रॉन. यानी कि जितनी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी उतना हमें इस इलेक्ट्रॉन को डिसलॉज करना यानी कि मुश्किल है, तभी तो हम एनर्जी ज्यादा दे रहे हैं. ठीक है. या हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज द स्ट्रेंथ बाय व्हिच इलेक्ट्रॉन इज बाउंड. जितना स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन बाउंड होगा टू द न्यूक्लियस उतनी ज्यादा हमें आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी. The higher the ionization energy, obviously the more difficult it is to remove an electron. Therefore ionization energy is an indicator of the reactivity. ठीक है. जितना हम आराम से, जितना हम जल्दी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाएंगे उतना इलेक्ट्रॉन जो होगा वो रिएक्टिव भी होगा. चलिए, यहाँ पे हमारा ये एक न्यूमेरिकल है. आई लाइक्ड इट एंड आई जस्ट कॉपीड इट. तो इसमें लिखा हुआ है, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं और ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द थर्ड एक्साइटेड स्टेट. यहाँ पे कंफ्यूजन के चांसेस है, ऑल्दो आई हैव एक्सप्लेन्ड इट, बट थर्ड एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगी हमारी? थर्ड एक्साइटेड स्टेट हमारी हो जाएगी, ये होगी हमारी ग्राउंड स्टेट, first excited state, second excited state, and this will be equal to third excited state. So normally we will be tempted to write this n is equal to 3, but this is not n is equal to 3. जब हम third excited state की बात करते हैं, what we mean actually, we mean n is equal to 4, because ground state, first excited state, second excited state, and third excited state. So the ionization energy of third excited state will be equal to 0.14 into 10 raised to the power minus 18 joules, and so option number 4 is the right answer. The formula used to determine the energy levels of any single electron atom is, ठीक है ना, ये हम बाइंडिंग एनर्जी इससे निकाल सकते हैं. अब हम अभी तक जो बात कर रहे थे, हम इस Z को कंसिडर नहीं कर रहे थे बिकॉज वी वर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन. लेकिन ये जो फॉर्मूला है इट इज अदर देन हाइड्रोजन, इसको दूसरे एलिमेंट्स पे भी अप्लाई किया जा सकता है, बशर्ते कि उन एलिमेंट्स में वी हैव गॉट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन. दिस सिंगल इलेक्ट्रॉन इज वेरी क्रूशियल. तो अगर हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम है तो इसी फॉर्मूले से हम इसकी बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हैं, और जब हमें बाइंडिंग एनर्जी मिल गई तो ऑब्वियसली इसी बाइंडिंग एनर्जी का जो नेगेटिव वैल्यू होगा दैट इज माइनस माइनस जेड स्क्वायर बाय आर एच, दैट विल बी इक्वल टू द आयनाइजेशन एनर्जी. या इन शॉर्ट बाइंडिंग एनर्जी हमारी नेगेटिव में होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी पॉजिटिव में होती है. लेकिन ये फॉर्मूला यूज करने के लिए क्या शर्त है कि हमारा जो एटम होगा इट इज सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम. उसके लिए मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स देती हूँ. तो ये निकालने के बाद आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू वी कैन प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जीज. जैसे हमारे पास हीलियम एटम है, हीलियम का क्या है एटॉमिक नंबर? इट इज 2. सो इट हैज गॉट 2 प्रोटॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन यहाँ पे हम ले रहे हैं हीलियम आयन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन गया, सो वी हैव गॉट 2 प्रोटॉन्स एंड 1 इलेक्ट्रॉन ओनली. इसी तरह लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है. लेकिन जब हम इस लिथियम को डाइपॉजिटिव फॉर्म में लेंगे तो इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, क्योंकि टोटल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3. इसी तरह से टर्बियम हमारे पास जो है, टर्बियम 64 प्लस,
terbium ion. Terbium का atomic number जो है that is 64. But here we have removed 65. But here we have removed 64 electrons. So how many electrons are left with terbium? We are left with only one electron. So as long as we have got one electron in the atoms, we can safely predict the ionization energy by calculating the value of the binding energy. चलिए, now हमने इसकी बात की. दिस इज नॉट सक्सेसिव एनर्जी लेवल, दिस इज बेसिकली सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज, राइट. यानी कि जो मैंने पहले भी डिस्कस किया आपके साथ कि व्हाट विल बी द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स. जैसे कि पहले हमने सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वी रिमूव, उसके बाद उसके अंदर वाला इलेक्ट्रॉन, उसके बाद नेक्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन. तो जो नंबर, जो इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा, यानी कि जो हम आउटर मोस्ट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे दैट विल बी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे दैट विल बी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है. So the first ionization energy of an element A is defined as the energy required by 1 mole of an isolated gaseous atoms to lose 1 mole of valence or outermost electrons and form 1 mole of a positively charged ion. The unit of ionization energy is given as kilojoule per mole. देखिए, ये मैंने आपको इससे पहले भी समझाया कि जब हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो हमारा जो यूनिट है वो है किलोजूल पर मोल. यानी कि हमने एक मोल एटम्स के लिए, if we take the number we have taken Avogadro's number of atoms that is 6.023 into 10 is power 23 atoms हमने लिए. ठीक है. तो इतने एटम्स में से कितनी एनर्जी लगेगी हमें इतने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने के लिए. ठीक है. सो आई अगेन रिट्रेट, मैं इस बात पे जोर दे रही हूँ, व्हेन यू टॉक ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी यू टॉक ऑफ 1 मोल ऑफ आइसोलेटेड गैसेस एटम्स, और जब इसमें इलेक्ट्रॉन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे इस 1 मोल ऑफ एटम से, तो वी विल गेट 1 मोल ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस. ठीक है. सो अगर चूंकि हम रिएक्शंस में दिखाते हैं एक एटम हम जहन में रखते हैं, बट एक्चुअली वी कंसिडर 1 मोल ऑफ these atoms, that is why the energy जो हमें चाहिए होती है to remove this mole of electrons that is in kilojoules, तभी हम लिखते हैं kilojoules per mole. ठीक है. यानी कि एक मोल एटम में एक मोल इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें कितनी मिनिमम एनर्जी लगेगी, वही हमारी आयनाइजेशन एनर्जी है. लेट अस टेक बोरॉन. फॉर एग्जांपल बोरॉन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 1s2 2s2 2p1, और इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी इसमें हमें ये p1 वाला इलेक्ट्रॉन इसको रिमूव करेंगे. जब हम इसको रिमूव करेंगे वी विल बी लेफ्ट विद बी पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, these many only 1s2 2s2, क्योंकि 2p1 को हमने क्या किया, वी हैव, हमने इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया. ठीक है ना. हमारा जो ये होगा हमारी जो बेसिकली डेल्टा ई विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स नॉट प्लस, तो दैट विल बी इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी. और आयनाइजेशन एनर्जी किसके बराबर होगी, इट विल बी इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दिस 2p. ये 2p इलेक्ट्रॉन कितनी स्ट्रेंथ से, ये 2p इलेक्ट्रॉन, इसको हम, लेट मी करेक्ट इट हियर, पहले मैं ठीक कर देती हूँ इसको यहाँ पे, इट्स नॉट प्लस, इट इज माइनस. ठीक है. तो हमने कहां से इलेक्ट्रॉन निकाला, वी हैव रिमूव्ड द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2p. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन वाज इन द 2p दिस सबशेल. ठीक है. तो बाइंडिंग एनर्जी विल बी ऑब्वियसली इक्वल टू माइनस, बाइंडिंग एनर्जी माइनस में होती है, इट विल बी इक्वल टू माइनस 2p, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी में हम मेंशन करते हैं कि ये किस सबशेल में है. ठीक है. इसी तरह से सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सी होगी, अभी हमने P1 निकाला, इसके बाद इसकी बारी आएगी ये S इलेक्ट्रॉन की. तो जब हम इस S इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो ये जो है हमारा डाई पॉजिटिव बन जाए, यहाँ से निकालना होगा, नॉट यहाँ से निकालना होगा, बी पॉजिटिव से निकालना होगा. तो दिस विल बिकम डाई पॉजिटिव और यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा. सो द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी is described as the energy needed to remove a second electron from each ion in 1 mole of gaseous unipositive ions to give gaseous dipositive ions. ठीक है. फिर से इस बात पे जोर है कि अभी हमारे पास यहाँ पे क्या मिला था, हमने 1 मोल ऑफ एटम्स लिया था और हमें मिला था 1 मोल ऑफ यूनिपॉजिटिव गैसियस आयंस.
ठीक है। अब हमें इस मोल ऑफ यूनिपॉजिटिव गैसेस आयन से एक मोल इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट 1 मोल ऑफ डाई पॉजिटिव आयन। ठीक है। अगेन what will be this equal to? जो हमारी एनर्जी है, it will be equal to energy of products minus energy of reactants again. ठीक है, दिस विल बी एनर्जी ऑफ डेल्टा ई विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। ये होगी हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। और व्हाट विल बी दिस आयोनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू? ये होगी इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी इन दिस 2s लेवल। ठीक है, इन रादर इन दिस 2s, क्योंकि यहां से हमने इलेक्ट्रॉन को निकाला है। तो जो हम द नंबर ऑफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ओरिजिनल एटम। जितने किसी भी इलेक्ट्रॉन में एटम होंगे, हम वहां तक आयोनाइजेशन एनर्जी ले जा सकते हैं। जैसे ये होगी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ये होगी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इसको निकालेंगे तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, पहला एस वाला निकालेंगे तो फोर्थ, नेक्स्ट एस वाला निकालेंगे तो फिफ्थ। लेकिन एक बात हमें याद रखनी पड़ेगी कि जितना हम इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे, ये यहाँ पे बी पॉजिटिव बन गया, राइट, डाई पॉजिटिव बना, इसमें लिखा है हमने एक्स, लेट्स से यही एक्स ही है, डाई पॉजिटिव बना। नेक्स्ट निकालेंगे तो ट्राई पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव। तो ये सक्सेसिवली इसका पॉजिटिव चार्ज जो है बढ़ता चला जाएगा। और जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा, उतना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना? दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होने का क्या मतलब है? वी विल हैव टू सप्लाई मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। यानी कि जितनी आयनाइजेशन एनर्जी जो हमारी, हम जैसे हम इंटीरियर की तरफ बढ़ते जाएंगे, टुवर्ड्स न्यूक्लियस बढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव करते करते हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है जो हमारी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज होती है, दैट इज जो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी 1 है, दैट विल बी लेस देन आयनाइजेशन एनर्जी 2, दैट विल बी लेसर देन 3, दैट विल बी लेसर देन 4, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है। और जब हमें मेंशन नहीं किया होता है, कोई क्वेश्चन आता है हमारे पास, तो सिंपल आयनाइजेशन एनर्जी दिया होता है, तो हम लोगों को समझ जाना चाहिए कि वहां पे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है। चलिए जी, अब हम यहाँ पे बात करेंगे। ये देख लीजिए, क्वेश्चन है, अगेन इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई हैव कॉपीड इट। which electron ejection requires the least amount of energy? चलिए जी, हमें किसमें सबसे कम एनर्जी चाहिए होगी? अगर हम इन तीनों की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली वी हैव टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। शेल सेम है, ये 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहाँ पे भी 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन एस से रिमूव करना है, ये इन दोनों में पी से रिमूव करना है। चूंकि हमारा एस इलेक्ट्रॉन जो है, एस सबशेल जो है, इट इज मोर पेनिट्रेटिंग, इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट है कंपेयर टू पी। सो यहाँ पे हमें आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी, सो लीव दिस ऑप्शन। अब इन दोनों में क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी पी से रिमूव करना है, यहाँ पे भी पी से रिमूव करना है। ठीक है, सिलिकॉन है, लेकिन यहाँ पे जो है इट इज सिलिकॉन आयन। तो याद रख लीजिए, जो हमारा आयन है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है, इससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल है कंपेयर्ड टू द न्यूट्रल आयन। सो इन तीनों ऑप्शंस को देखते हुए हमें जो है मिनिमम एनर्जी लगेगी इन केस ऑफ ऑप्शन 2, राइट। इस दो के केस में वी विल हैव टू सप्लाई द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। सबसे पहले हमने देखा नेचर ऑफ द शेल। ठीक है, एस और पी, एस में रिमूव हो रहा है तो इसमें ज्यादा लगेगी, लीव इट। इन दोनों में हमने देखा कि पी से रिमूव हो रही है, दोनों टाइम्स में पी से ही रिमूव हो रहे हैं, बट यहाँ पे आयन से रिमूव हो रहा है, यहाँ पे न्यूट्रल एटम से रिमूव हो रहा है। तो ऑब्वियसली आयन जो है, इसका इट विल एक्सर्ट अ ग्रेटर दिस अट्रैक्टिव फोर्स ऑन द दिस इलेक्ट्रॉन कंपेयर टू द एटम। ठीक है, राइट, क्योंकि इसकी बिकॉज ऑफ द लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, आप देख लीजिए, इसमें लास्ट में 4 है, इसमें 3 ही है, इसमें लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं, अगर हम इसको लिखेंगे 3p x1 और 3p y1 लिख लेंगे, तो यहाँ पे न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन इट अ बिट। इसको हम अगर ऐसे लिखते हैं, इसको लिख रहे हैं हम 3p x1
और इसको लिख रहे हैं हम 3p(y1). ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर है कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के जो बीच है, ऑल्दो उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि सेम सबशेल में, बट स्टिल थोड़ा सा इफेक्ट हो जाएगा। और जो हमारा जो आयन है, इसका अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसका अट्रैक्टिव फोर्स ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस न्यूट्रल एटम। सो व्हाट विल बी अराइव एट, हमारा जो क्या कहेंगे, वी विल रिक्वायर लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ऑप्शन, इन केस ऑफ सेकंड ऑप्शन, टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। चलिए, अब ये है कि अगेन दिस इज अ वेरी गुड फिगर, आप देख लीजिए ये हमारा अब देख लेते ये कौन सा एलिमेंट है हमारा। दिस इज, वन मोमेंट, हाईलाइट आ गया है, दिस इज लेजर। ओके, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, दिस इज मैग्नीशियम। ठीक है, बिकॉज इट हैज गॉट 11 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दिस इज द आयनाइजेशन एनर्जी जो हमें पहले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए लग रही है। अगर आप देखेंगे दिस इज द आयनाइजेशन एनर्जी, आप देखिए ये जो आयनाइजेशन एनर्जी विद एवरी, इसमें ज्यादा है थर्ड में कंपेयर टू सेकंड, 4 में और ज्यादा, 5 में और ज्यादा, 6 7 8 9 10 11 12। तो जितना हम आगे बढ़ते जाते हैं हमारी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती चली जाती है। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो जगह जो ये इंक्रीज है, इट इज स्टीप, ये राइज, शार्प राइज है। सो जैसे हमारे सेकंड और थर्ड में, तो ये शार्प राइज की वजूहत क्या होती है, या तो हम शेल बदल रहे हैं, जैसे इसमें 1s1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है इसमें फर्स्ट एंड सेकंड में जो हमारा जो मतलब जब हमारा सेकंड और थर्ड में बात करते हैं, इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बदल रहा है, टू पुट इट सिंपली। यानी कि अगर इसमें फॉर एग्जांपल सेकंड शेल से निकल रहा है, तो इसमें थर्ड शेल से निकल रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बदल जाता है, यहाँ पे लेट अस से कि 10th और 11th इनमें लेवल्स बदल रही है। अगर इसमें n लेवल से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसमें n+1 लेवल से इलेक्ट्रॉन बदल रहा है, निकल रहा है। यानी कि इसमें फॉर एग्जांपल अगर हम कहेंगे इसमें अगर हम कहेंगे 9th लेवल से निकल रहा है, तो इसमें 10th लेवल से निकल रहा है, लाइक दैट। ठीक है, तो ये जो शार्प राइजेस है, शार्प राइजेस दो वजूहत की वजह से होती हैं, या तो n चेंज हो रहा है। ठीक है, n जब इंक्रीज, रादर इंक्रीज नहीं, एन का जो है when we have to when we just remove an electron from a shell nearer to the nucleus। इसको थोड़ा सा समझाने की जरूरत है। जैसे मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, ये हमारा न्यूक्लियस है। जब हम सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज की बात करते हैं, लेट से ये एक शेल है, ये दूसरा शेल है। ठीक है, इसमें फिर अपने अपने सब शेल्स हैं, और ये एक और शेल है। ठीक है, जब फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है ना, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहीं से निकला, तीसरा इलेक्ट्रॉन भी यहीं से निकला। ठीक है, तो ये जो आयनाइजेशन एनर्जी, इसमें और इसमें ज्यादा फर्क नहीं होगा। बट जब हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जब हम इस एनर्जी लेवल में पहुंच जाएंगे, तो जो हमने लास्ट में यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला और जो इस लेवल से इलेक्ट्रॉन निकला, लेट अस से दिस इज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लेवल, थर्ड लेवल से जो इलेक्ट्रॉन निकला, फिर जो हमने सेकंड लेवल से इलेक्ट्रॉन निकाला, इसमें काफी फर्क होगा क्योंकि एन बदल गया। ठीक है ना। एक और चीज, जब हम क्या कहते हैं जी इसको, हमारे जो ये शेल्स है, जब ये कंप्लीटली फिल्ड या हाफ फिल्ड होते हैं, तो दे आर मोर स्टेबल। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो वी नीड टू गिव इट मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो उस टाइम भी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, तो जब हम सक्सेसिव एनर्जी, प्लॉटिंग द सक्सेसिव एनर्जीज ऑफ मैग्नीशियम क्लियरली शोज द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल्स एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट ईच लेवल। ठीक है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज इंक्रीज एज मोर इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, ऑब्वियसली, क्योंकि जितने जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, पॉजिटिव जो हमारी ये है क्या कहते हैं इसको, पॉजिटिव चार्ज बढ़ती चली जा रही है। जैसे यहाँ पे ये पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के टाइम सिंगल पॉजिटिव था, यहाँ पे डबल पॉजिटिव है,
यहाँ पे ट्राई पॉजिटिव है, यहाँ पे 4 पॉजिटिव है। तो जितना जितना ये पॉजिटिव पॉजिटिव होता जाएगा उतना उतना जो है ऑब्वियसली जो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा हो जाएगी, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन जो मतलब लाइक कि जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें और न्यूक्लियस में एनर्जी अट्रैक्टिव फोर्स है, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाएगी। जब बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाएगी तो वी विल हैव टू सप्लाई मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये मैंने बताया कि जब हम लार्ज जंप्स देखते हैं तो हम देखते हैं देयर इज अ चेंज इन द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे हो रहे हैं। तो हमारा आयनाइजेशन एनर्जी इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, एंड व्हाट आर दोज टू फैक्टर्स? इट डिपेंड्स ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इस पे ये डेफिनेटली डिपेंड करता है। दैट इज व्हाई कि आयंस में जब जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ती जाती है, ये जो हमारा फोर्स है ये बढ़ता जाता है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन ऑब्वियसली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये फोर्स जब बढ़ता चला जाता है तो वी विल हैव टू सप्लाई मोर एनर्जी टू इजेक्ट दिस इलेक्ट्रॉन। सो इट डज डिपेंड ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस, और एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स अपॉन द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है, ये इस अट्रैक्टिव फोर्स को जो जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच होता है इसको कमजोर करता है। जो रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स है ये अट्रैक्टिव फोर्सेस को कमजोर करते हैं। सो जितना रिपल्सिव फोर्स बढ़ता जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन ये कम हो जाएगा, जिसके नतीजे में हमारी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो effective nuclear charge felt by the outermost electrons will be less than the actual charge because of the shielding and the screening effect. I will suggest कि जो आप मेरा लेक्चर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को लेकर के, इसमें मैंने स्क्रीनिंग शील्डिंग इफेक्ट वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई विल सजेस्ट कि वो लेक्चर आप जरूर देख लें। तो यहाँ पे यही बात मैं कह रही हूँ कि अगर जो रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स है वो बढ़ जाता है, ठीक है, या बीच में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, लेट अस से कि हमारी जो है यहाँ पे लेट अस से अभी हम 3 की बात कर रहे हैं, अब हम जैसे 4 की बात करेंगे। ठीक है जी, दिस इज आवर लेवल 4। जब हम 3 में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बीच में हमें सिर्फ 2 ही लेवल्स हैं, सिर्फ 2 लेवल्स के इलेक्ट्रॉन हैं जो इस न्यूक्लियस और इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच हाइल है, या जो एक शील्ड का काम करते हैं या स्क्रीनिंग इफेक्ट पैदा करते हैं। ठीक है, तो लेकिन अगर हम 4 की बात करेंगे, लेवल नंबर 4 की, तो अब ये थर्ड लेवल भी ऐड कर रहा है स्क्रीनिंग इफेक्ट को, और जब ये स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट ऐड हो जाएगा, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड दिस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। जब ये अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीज हो जाता है, बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, और जब बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, इसी का मतलब है कि आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज हो जाती है। नाउ वी हैव गॉट फैक्टर्स गवर्निंग द आयोनाइजेशन एनर्जी। ये वही वाली बात है जो अभी तक हम कर रहे हैं, जस्ट देयर आर सर्टेन पॉइंट्स दैट यू नीड टू जस्ट लिसन वेरी केयरफुली। तो बाकी बात वही है जो मैंने पूरे लेक्चर में आपको बताई। देखिए जी, higher the ionization energy, more difficult is to remove an electron। ठीक है, ऑब्वियसली जितनी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी उतना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट होगा, ऑब्वियसली उतनी ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी टू डिसलॉज द इलेक्ट्रॉन। So several factors that govern the attractive force and influence ionization energy are an increase in the positive charge of the nucleus increases the attractive force between the nucleus and the electron, and this increases the nucleus charge, new ionization energy। अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, ठीक है, जो मैं थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ, ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है जी, इस इलेक्ट्रॉन को हमें रिमूव करना है। एनर्जी कितनी देनी है? एनर्जी देनी है उतनी ही जितनी इन दोनों के बीच जो होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। ठीक है ना, और जो इन दोनों के बीच एनर्जी होगी बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे। उतनी ही एनर्जी हमें देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, उतनी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा, उतनी आयनाइजेशन एनर्जी हमें ज्यादा देनी पड़ेगी। ये बाइंडिंग एनर्जी किस चीज से बढ़ेगी? ऑब्वियसली अगर इस न्यूक्लियस की चार्ज बढ़ जाएगी, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन दिस न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, जिसकी वजह से बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और जिसकी वजह से हमें विल हैव टू सप्लाई मोर एनर्जी, या विल हैव टू सप्लाई मोर आयनाइजेशन एनर्जी टू इजेक्ट दिस इलेक्ट्रॉन। सो ऑब्वियसली ये जो पॉइंट है, इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इंक्रीज द अट्रैक्टिव फोर्स,
This is very valid. दूसरा है ionization energy is inversely proportional to the distance between the nucleus and the electrons. If an electron lies near to the nucleus or close to the nucleus, then the attractive force will be greater than the electron which is further away, resulting in increased ionization energy and vice versa. इससे पहले वाले स्लाइड मैंने एक्सप्लेन किया. जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन हम लेंगे, इसका अट्रैक्टिव फोर्स जो होगा वो ऑब्वियसली अगर हम नेक्स्ट शेल ले लेंगे वो ऑब्वियसली इस अट्रैक्टिव फोर्स से ज्यादा हो जाएगा. रीजन बीइंग कि इन दोनों के बीच ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में एक पर्दे का काम, एक शील्ड का काम कर रहे हैं. ये इसको पूरी तरह से इसको अट्रैक्ट नहीं करने दे रहे हैं ना इस इलेक्ट्रॉन को. ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा उतना उतना बीच में और शेल्स आते जाएंगे, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा और जो हमारी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज होती जाएगी, जो बाइंडिंग एनर्जी है वो डिक्रीज होती जाएगी. बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब है आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी. यानी कि जितना हम न्यूक्लियस की तरफ आते हैं हमारी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाती है फॉर द रीजन की इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रही है. जितना हम न्यूक्लियस से दूर हो रहे हैं उतना बीच में और शेल्स आती जा रही हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है. इसका मतलब है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है जिस चार्ज से ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है वो कम हो रही है और यही जो हमारा है दैट्स आवर बाइंडिंग एनर्जी. ठीक है, और जब हमारी बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो ऑब्वियसली आवर आयनाइजेशन एनर्जी इज डिक्रीजिंग. यानी कि क्लोजर द इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस ग्रेटर इज द आयनाइजेशन एनर्जी. यही वाली बात अगेन कि larger the number of electrons between the valence shell and the nucleus, greater is the screening effect. जितना इन दोनों के बीच ज्यादा शेल्स होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा. स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाएगी. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाएगी तो जो पुल है विद विच द इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड टू दिस न्यूक्लियस ये डिक्रीज हो जाएगा और जितना ये पुल डिक्रीज होता जाएगा उतना हमें कम एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी टू डिस्लॉज दिस इलेक्ट्रॉन. और बाहर से हमें क्या देना पड़ता है, बाहर से हमें देनी पड़ती है आयोनाइजेशन एनर्जी. सो आवर आयोनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज, राइट. और in case of two electrons present in the same orbital, they experience some form of repulsion. This weakens the attractive force exerted by the nucleus. The ionization energy will thus be less in paired electrons as they can be removed easily. Obviously, जैसे हमारे पास एक शेल, जिस शेल से हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, जिस सब शेल से अगर इसमें एक और इलेक्ट्रॉन भी है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है like we have got two electrons in that subshell, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच ऑब्वियसली फोर्स ऑफ रिपल्शन है और ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है ये अट्रैक्टिव फोर्स को वीकन करेगा जो न्यूक्लियस की तरफ से इन इस इलेक्ट्रॉन पे एक्सर्ट हो रहा है. सो डेफिनेटली इट विल डिक्रीज द आयोनाइजेशन एनर्जी, राइट. चलिए, दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल बी टेकिंग अप एक तो हम एप्लीकेशंस की बात करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ दिस आयनाइजेशन एनर्जी, एंड वी विल टॉक अबाउट द ट्रेंड्स. पीरियोडिक टेबल में क्या होता है इस आयनाइजेशन एनर्जी के साथ एज वी मूव अलोंग ए पीरियड एंड डाउन अ ग्रुप. I hope things will be clear. I hope you have understood it fully. And if you find this lecture fruitful, please like, share, and subscribe.